Good morning, students. Today we will start our next civics chapter, fundamental rights, fundamental duties, and directive principles of state policy. Students, in 7th class, you have learned about a short explanation about fundamental rights and directive principles of state policy. Now in 8th class, we will discuss in detail about fundamental rights, what are these rights and why they are important and why these fundamental rights guaranteed to the people by the constitution. Okay students, so let us start with fundamental rights. Fundamental rights in Hindi, these are known as मौलिक अधिकार. Okay, so students, fundamental rights are those rights which are essential for intellectual, moral and spiritual development. हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये अधिकार हमें दिए गए. Okay, and why these fundamental rights are guaranteed by our constitution? Okay, students, when we got independence, हम ज़रा flashback story में जाते हैं. When we got independence, जब हमें आज़ादी मिली after a long period of slavery and exploitation by the Britishers, जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे जो लीडर्स थे, they framed our constitution. अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 7th क्लास, बट अगेन वी विल रिवाइज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्रेमवर्क और अ डॉक्यूमेंट which show the power and functions of our government. Means constitution show the rule and regulations or the working of our government. हमारी गवर्नमेंट की क्या पावर्स होंगी, क्या फंक्शंस होंगे, कैसे वो काम करेगी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. तो हमारे फ्रेमर्स ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एंड द आइडियल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड इन आवर प्रीएम्बल. प्रीएम्बल में दिए गए हैं. क्या हैं वो आइडियल्स? फर्स्ट है कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री है. उसमें हमें कुछ चीज़ें दी गई है जैसे जस्टिस, लिबर्टी, ओके, फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़ें हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हैं. ओके, अब इनका फ़ायदा कब है? व्हेन सम राइट्स गारंटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये तो बातें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई हैं, लेकिन इनका फ़ायदा जब है जब हमें कुछ अधिकार मिलेंगे. after then we enjoy all the freedom given by our constitution. Okay, so these fundamental rights are important for the development of the personality of every individual. हर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के लिए हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं. अगर हमें अधिकार ना हो तो जितनी भी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में मेंशन्ड है उनका कोई मतलब नहीं रह जाता. ओके, now our constitution provided 6 fundamental rights. हमारे पास 6 fundamental rights हैं. These rights are right to equality, second right to freedom, third right against exploitation, fourth right to freedom of religion, fifth cultural and educational rights, and sixth, the last one, right to constitutional remedies. Students, these are our 6 fundamental rights and one by one we will discuss in our chapter. So let us start with the first fundamental right, right to equality. Okay, right to equality. Under right to equality, these rights are given. First, equality before law. Means all are equal before law. चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, रिच हो, पुअर हो, गर्ल हो, बॉय हो,
किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म को फॉलो करता हो, ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, सिर्फ एक पहचान होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया इक्वल बिफोर लॉ, कानून की नज़रों में सब इक्वल है। नेक्स्ट है आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, race, caste, sex or place of birth. Means discrimination is banned on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. किसी के साथ भी हम धर्म के नाम पर, उसका जन्म रिच कम्युनिटी में हुआ है, पुअर कम्युनिटी में, ऊंचे घराने में हुआ है, छोटे घराने में, किस कास्ट का है, लोअर कास्ट का है, अपर कास्ट का है, लड़का है, लड़की है, उसका जन्म कहीं भी हुआ है, उसके आधार पर हम उसके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते। दिस इज टोटली बैन्ड अंडर द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी in matters of public employment. Means everybody have a right to get equal opportunity in the field of employment. हर एक को एम्प्लॉयमेंट के बराबर अपॉर्चुनिटी या अवसर मिलेंगे। हर एक को अपनी काबिलियत, अपनी मेरिट के आधार पर एम्प्लॉयमेंट लेने का अधिकार है अंडर द राइट टू इक्वालिटी। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आपको पता है पहले अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत का बहुत प्रचलन था। लोअर कास्ट के लोगों, लोअर कास्ट एक्सप्लॉयटेड बाय द अपर कास्ट, अपर कास्ट के लोग उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनको अछूत कहते थे, मतलब जिसको छूना मना है, अगर छू लिया तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा पहले होता था। ओके, एंड गांधी जी गेव वर्ड हरिजन टू दीज पीपल्स। उनको अनटचेबिलिटी से मुक्त कराने के लिए गांधी जी ने उन्हें हरिजन शब्द से संबोधित किया, और इस अनटचेबिलिटी को राइट टू इक्वालिटी के अंडर बिल्कुल बैन कर दिया गया। आप कोई किसी के साथ अनटचेबिलिटी वाला व्यवहार नहीं कर सकता। ओके, लास्ट है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। पहले क्या होता था, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे तो राजे महाराजे होते थे, उनके नाम के आगे राय बहादुर, ठाकुर, ये बड़ी बड़ी पोस्ट थी, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो ज़मींदार बड़े बड़े, जो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। अब किसी को भी अपने नाम के साथ ये टाइटल लगाने की इजाज़त नहीं थी। दिस इज़ टोटली बैंड अंडर द राइट टू इक्वलिटी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड the names of 6 fundamental rights and the detail of right to equality. After listening this video, you will read this topic with the help of your book. Okay student, thank you and have a nice day.